Good, good morning, dear student. Today our topic is pleiotropy, class 12 biology. Okay, let us start. Pleiotropy. What do you mean by pleiotropy? Pleiotropy means a gene controlling more than two traits, or a gene is responsible for many phenotypic characteristics is called pleiotropy. Previously, we have already discussed that a particular gene is responsible for controlling a particular characteristics, but pleiotropy means a single gene that is responsible for many characteristics, that is called the pleiotropy. Okay, and the gene which is responsible for controlling this type of many characteristics, then that gene is called pleiotropic gene. That gene is called what? Pleiotropic gene. Pleiotropic gene means the particular gene which is responsible for many characteristics, that is called pleiotropic. I am giving you one more example, like HbA. You can say this is a pleiotropic gene. I am talking about a normal person. In case of a normal person, Hb means capital H, small b means hemoglobin, right? HbA, it means pleiotropic gene of a normal person. Pleiotropic genes means what? The gene is controlling for responsible for controlling many characteristics, that is called pleiotropic gene. So Hb is a pleiotropic gene of a normal person. Okay, this gene, this pleiotropic gene HbA, that controls two characteristics. Character 1 and character 2. What is character 1? Now it controls the structure of hemoglobin. Second characteristics is controls the shape of RBC. And you know well what do you mean by hemoglobin. Hemoglobin can be written as capital H, small b. It is a iron containing pigment which is present in RBC. In human RBC, okay, hemoglobin is present. It means it is a iron containing pigment due to which blood looks like red. Okay, if we will go for the detailed structure of a hemoglobin, then we must see there are 4 polypeptide chains are there. That means 4 in hemoglobin that contains 4 polypeptide chains. Out of 4 polypeptide chain, 2 are alpha chain and 2 are beta chain. Okay, हमारा जो कंसर्न है वो बीटा चेन का है. ठीक है, इसी लेक्चर में हम बीटा चेन के ऊपर फोकस करने वाले हैं. ओके, अगर वही बीटा, ये नॉर्मल पर्सन का बात मैं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ए नॉर्मल ह्यूमन बींग. ओके, नॉर्मल पर्सन. ओके, प्लियोट्रोपिक जीन ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, जो कि 2 कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, एक है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन और एक है शेप ऑफ आरबीसी. पहले हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन. बीटा चेन जो कि हमारा कंसर्न है, इसलिए हम बीटा चेन के बारे में पढ़ेंगे. तुम जानते हो कि एमिनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट होता है. हम क्लास 11 में डिटेल पढ़े थे. ओके, एमिनो एसिड्स के बारे में. तो बीटा चेन के अंदर ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये एक एमिनो एसिड वैलिन, हिस्टिडाइन, ल्यूसिन, थ्यूनाइन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड अगेन ग्लूटामिक एसिड. ग्लूटामिक एसिड that repeats 2 times in position 6th and 7th. Okay, and this hemoglobin is responsible for transportation of the gases. कैसे? तुमको पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन जो है एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जब ऑक्सीजन आके उसके साथ बाइंड होता है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ अटैच होता है. ठीक है, जब ऑक्सीजन अटैच होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है, हम उसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते थे. ये क्लास 11 में हम डिटेल पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है ना? ऑक्सीजन को अटैच करना और कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करना. उसका सीक्वेंस में 6th and 7th में ग्लूटामिक रिपीट है. ये है तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ए हीमोग्लोबिन. ओके, तो ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. देन दिस प्लियोट्रोपिक जीन HbA इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द शेप ऑफ आरबीसी. आरबीसी का शेप ये भी तुमको पता है. ठीक है, शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकॉनकेव. ओके, बाइकॉनकेव किस लिए ना? इट प्रोवाइड्स ए लार्जर सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ द ऑक्सीजन. तो ये जो बाइकॉनकेव है, इसमें से आके ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे. यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन आके जुड़ जाएंगे. ठीक है, और ये ऑक्सीजन मतलब हर बॉडी का हर पार्ट को ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है, उसी प्रकार ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर मतलब अटैच हो जाएंगे. तो आरबीसी का काम है, इट प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ द
ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। आरबीसी का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितना है ना 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन दैट कंटेन्स और कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम का हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाते हैं। ठीक है, यही है तुम्हारा नॉर्मल शेप ऑफ ए आरबीसी एंड दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ए हीमोग्लोबिन। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन कंट्रोल कर रहे हैं ना, ये HbA कंट्रोल कर रहे हैं, यानी प्लियोट्रोपिक जीन कंट्रोल कर रहे हैं। एक जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंसर्न यही है कि जब सिकल सेल अनेमिया होता है तब क्या होने वाला है। ठीक है, वही जीन कैसे चेंज हो जाता है। ओके, सिकल सेप अनेमिया में क्या है ना, सिकल सेप का मतलब, सिकल का मतलब समझ लो क्या है। सिकल का मतलब जो होता है धान काटने के लिए जो एंटीक्वेट एक टूल्स है। प्रीवियसली लोग एंटीक्वेट मतलब बहुत एंशियंट वे में जो धान काटते थे वो ही शेप का है। जो आरबीसी है, आरबीसी का शेप जो हमारा जो बाइकॉन्केव है वो सिकल जैसा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं सिकल सेल अनेमिया। तो ये बाइकॉन्केव शेप का जो आरबीसी सिकल क्यों बन गया, व्हाई, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, why do the RBCs converted into sickle shaped structure? Because of the point mutation, because of point mutation। तुमको अगर कोई सवाल पूछेगा कि what is the reason, what is the genetic reason for the sickle cell anemia, तो तुम लोग को बोलना है sickle cell anemia में होता क्या है ना, RBC is the shape of the RBC biconcave structure changes into sickle shaped structure because of point mutation। So what is point mutation? व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? हम लोग पढ़े थे ना अभी जस्ट कि पॉइंट म्यूटेशन का मतलब यही होता है कि बीटा चेन, ये जो हम पढ़े थे ना बीटा चेन का जो स्ट्रक्चर है इसमें होता क्या है ना, 6th और 7th में देखो ग्लूटामाइन है। ये ग्लूटामाइन 6th पोजीशन का जो ग्लूटामाइन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वालिन, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सो आई एम राइटिंग हियर पॉइंट म्यूटेशन मतलब जो 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे ग्लूटामाइन है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है, यहाँ पे पढ़े थे हम प्रोलेक्टिन है, थ्रियोनाइन है, ल्यूसिन है, हिस्टिडाइन है और वेलिन है कि नहीं। यहाँ पे वेलिन, यहाँ पे तुम्हारा हिस्टिडाइन, यहाँ पे ल्यूसिन, यहाँ पे थ्रियोनाइन, यहाँ पे प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड डबल रिपीट है। ये 6th वाला पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड है ना ये रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, उसके जगह में वेलिन आ जाएगा। ठीक है, इसके जगह में क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है ना, इन 1 बीटा चेन ओके 6th पोजीशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। तो देखो स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा ग्लूटामिक एसिड दोनों रिपीट हुआ था। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड चला गया, वेलिन आ गया, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से बीटा चेन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिसकी वजह से उसका जो ऑक्सीजन कैरी करने का जो इफिशियंसी था वो इफिशियंसी घट चुका है। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज। एज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज सो मस्कुलर एक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि हमारा बॉडी को एक्टिविटी करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू oxygen is required to oxidize the food in order to release the energy. If oxygen level will decrease, so you cannot perform the muscular activities or the physiological activities. This is one reason of the point mutation. Point mutation कुछ नहीं है, बस उसका जो बीटा चेन का जो स्ट्रक्चर 6th में ग्लूटामिक एसिड है वो वेलिन रिप्लेस हो जाएगा। ओके, ये हो गया तुम्हारा एक रीजन सिकल सेल एनीमिया का। ओके, पॉइंट म्यूटेशन। और क्या चेंज कर लेता है ना, आरबीसी का स्ट्रक्चर को तो भी चेंज कर लेता है। समझ में आ रहे, आरबीसी का स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, और एक है तुम्हारा ये जो बीटा चेन है उसको भी चेंज कर लेता है। समझ में आ रहा है, बीटा मतलब मेरा कहने का मतलब है सिकल सेल एनीमिया में 2 चीज़ होता है। एक है कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जो कि 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड है वो वेलिन हो जाता है, और शेप ऑफ आरबीसी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया। हम बात किए थे ना नॉर्मल ह्यूमन बींग का, यहाँ पे देख लो नॉर्मल ह्यूमन बींग का जो हम बात किए थे जीन जो कि 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन है, HbA है। ये अगर ये एक जीन है, और HbS का मतलब होता है सिकल सेल करने वाला जो जीन है।
these two genes HBS and HBS, these alleles okay is responsible for sickle cell anemia। और कुछ लोग का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है ना, HbA भी होता है, HbS भी होता है, यानी उनके पास नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन 50% होता है और HbS वाला जो सिकल से करने वाला जो जीन है वो भी प्रेजेंट होता है, यानी 50-50% है। और नॉर्मल जो लोग होते हैं उन लोग का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है ना, दोनों के दोनों जो एलेलीज होता है वो HbA यानी प्लियोट्रोपिक जीन का नॉर्मल प्लियोट्रोपिक जीन होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्लियोट्रोपिक जीन है एक होता है नॉर्मल, एक होता है सिकल सेल। यहाँ पे क्या है ना, दोनों को दोनों जो होते हैं वो सिकल सेल जीन ही होते हैं। तो यहाँ पे एक एडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, यहाँ पे देखो कुछ ब्लड के अंदर कुछ हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और कुछ हीमोग्लोबिन सिकल सेल है, जिसकी वजह से उसको एडवांटेज मिलने वाला है। कौन सा एडवांटेजेस, बिकॉज यू नो जब ये जो मतलब उसका कुछ आरबीसी ऐसे होगा, समझ रहे हो, बाइकॉनकेव होगा, ठीक है, और कुछ सिकिल होगा और कुछ सिकिल होगा, जिसकी वजह से जब जो प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम कौन है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, ये जो प्रोटोजोआ ना, समझ में आ रहा है, उसको इफेक्ट कर सकता है, लेकिन उसका शेप बिगड़ चुका है सिकल सेल एनीमिया में, सिकल में, तो प्लाज्मोडियम यहाँ पे पेनिट्रेट कर नहीं पाएगा ढंग से। तो जो आदमी का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और सिकल सेल एनीमिया है, उसमें से प्लाज्मोडियम अटैक नहीं हो पाएगा, यानी उसको मलेरिया डिजीज नहीं हो पाएगा। दिस इज द एडवांटेजेस। ओके, थैंक यू।